So good morning, one and all present here, and I am Mukesh Purwa, your chemistry teacher, and आप देख रहे हैं मुझे केमिस्ट्री पाठशाला पे। तो ये हमारा केमिस्ट्री का नया चैनल है। तो आज हम शुरू करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। तो अर्लियर वी हैव डिस्कस द रिडक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू alcohol. Earlier we have discussed the reduction of aldehydes and ketone to alcohols. Now we are going to discuss the reduction of aldehydes and ketone into hydrocarbon. So this was the table I have discussed earlier, that when we reduce the aldehydes and ketone, and the meaning of reduction means whenever we add hydrogen in aldehydes and ketone, reductions take place. Okay, so whenever we add hydrogen in the aldehydes and ketone, reductions take place. And reductions of aldehydes and ketones are divided into two major categories. First is reductions of aldehyde and ketone into alcohol, that we have discussed earlier, and the video lectures is given in the YouTube channel, and the link is provided. And the second type of reductions of aldehydes and ketone into hydrocarbons. So today we are going to discuss reductions of aldehydes and ketone into hydrocarbons. So reductions means whenever aldehydes and ketones react with hydrogen, they reduces. And for reductions we require reducing agent. So we have strong reducing agent as well as weak reducing agent. So we have two types of reducing agent: strong reducing agent and weak reducing agent. So reductions of aldehydes and ketone into hydrocarbon, there are two reactions which reduce aldehydes and ketone into hydrocarbon. The first and very important reaction is Clemmensen reaction, and the second and most important reaction is Wolff-Kishner reactions. So I am going to discuss both the reactions one by one in a very simple and effective manner, and you have to see very carefully, and very minor difference is there in both the chemical reactions. See, in both the chemical reactions, चाहे वो क्लीमेंस रिएक्शन हो चाहे वो वुल्फ-किश्नर रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शंस में क्या होगा, एल्डिहाइड्स और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट होंगे। क्लीमेंस रिएक्शन के अंदर हमें क्या लेना है, हमें जो कैटलिस्ट लेना है वो क्या लेना है, हमें जिंक Hg लेना है, जिंक Hg एमलगम। तो एक ये मैं ये बात और बता देता हूँ, व्हाट इज एमलगम। तो एमलगम क्या होता है बच्चों, किसी भी मेटल को अगर हम मर्क्यूरी के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो उसका एमलगम बनता है। whenever we react any metal with zinc, then we get amalgam. Sorry, whenever we react any metal with mercury, we get amalgam. For example, zinc amalgam, when we react zinc with mercury, we get zinc amalgam. Similarly, sodium amalgam, when we react sodium to Hg mercury, we get sodium amalgam. So in Clemmensen reaction, the very must reagent that we have to take in this chemical reactions is zinc amalgam. So let's start the reactions. Reductions of aldehydes and ketone into hydrocarbon. The first reaction is Clemmensen reaction. It is a name reaction again, and dear student, you have to see very carefully, and you have to memorize these reactions very carefully, because they are name reactions, and name reactions, all type of name reactions are very important for exam point of view. So what we have to do, it very simple reactions. RCHO means aldehyde, is the simplest the representation of a aldehyde. RCHO, R means alkyl group, CHO means the functional group of the aldehyde. React with hydrogen in the presence of zinc amalgam. What is zinc? This is the zinc amalgam, and in the presence of acid means the reactions take place in the slightly acidic medium. These reactions take place in the slightly acidic medium. Then in these reactions, the hydrogen react with aldehydes and convert into alkane. This is the alkane, simplest alkane. So how these reactions take place? The 4H attached to CHO. So how this 4H will attach to CHO? तो रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा है
इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऐड हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखो ये जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है इसमें से ये ऑक्सीजन रिमूव होकर बाहर निकल गया, किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। इस रिएक्शन के अंदर RCHO के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो कितने हाइड्रोजन लिखे हमने यहाँ पे 4H लिखे, तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए बच्चों, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो गए। कहाँ पे ऐड हो गए, एक हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस किया, तो इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करने से हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। 2 हाइड्रोजन लगाने से जो फॉर्मूला बना वो बना RCH3। एक H पहले से मौजूद था, 2 H और इसमें ऐड हो गए, तो क्या फॉर्मूला बन गया, RCH3। एंड व्हाट इज RCH3? RCH3 इज द सिंपलेस्ट एल्केन। Okay, these are the examples of Clemmensen reaction. This is the acetaldehyde or ethanol react with hydrogen in the presence of zinc amalgam and NCl, we get alkane, and this alkane is ethane. This is the ethane, you know very well, and water molecule remove. Next, chemical reactions, reductions of ketone. तो कीटोन भी रिड्यूस होते हैं बच्चों, ये जो कीटोन है ये भी रिड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड NCl। 4H विल रिएक्ट इन दिस रिएक्शंस। तो 2H जो है बच्चों ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेंगे, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके 2H यहाँ पे लगेंगे, तो 2H अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, ऑक्सीजन को हटा के अगर मैं 2H यहाँ लगाता हूँ, इस जगह पे अगर मैं 2H लगाता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनॉन, यू नो वेरी वेल, एंड H2O will give out in the chemical reactions. So Clemmensen method is widely used to convert aldehydes and ketone into hydrocarbon. It is very important chemical reaction. So keep in mind, dear student, it is a name reaction although, and it is very important because these methods are widely used to convert aldehydes and ketone into hydrocarbon. Now second chemical reactions for reductions of aldehydes and ketone into hydrocarbon is Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction or Wolff-Kishner reaction. Again, it is name reaction, so it is very important reactions. इसके अंदर क्या है बच्चों, उसके अंदर तो हमने क्या किया था, एल्डिहाइड और कीटोन को डायरेक्टली हमने किससे रिएक्ट करवाया था, जिंक एमलगम से हमने रिएक्ट करवाया था इन द प्रेजेंस ऑफ NCl। वोल्फ-किशनर रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, वोल्फ-किशनर रिएक्शंस में हम एल्डिहाइड और कीटोन को पहले हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन आपको पता होगा बच्चों NH2 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 इज हाइड्रोजन, NH2 single bond NH2 is a ammonia derivative. It is a ammonia derivative, you know very well. When we remove hydrogen from ammonia, this is the ammonia, when we remove hydrogen from the ammonia and add NH2 in the place of hydrogen, we get the molecule of hydrogen. So it is a ammonia derivative. Okay, so when aldehyde react with hydrogen, then first step is the removal of this oxygen, and we get this type of intermediate, we get. And when this compound react with KOH in the presence of glycol, and the temperature should be high, the temperature is 453 Kelvin to 473 Kelvin, then we get a alkane. Now the chemical reactions is, I think, clear to you. It's very simple reactions. I am writing here CrCHO. It react with H2N NH2. What is H2 and NH2? It is a hydrogen. This water molecule will remove and we get this molecule. Now when we boil this compound in the presence of KOH and glycol at 453 473 Kelvin in between, then this nitrogen gas will remove. In the form of N2 gas. This is the gas, and finally we get alkane, RCH and H2. So the formula is RCH3. Now the chemical reactions is clear to you. Again, this is the example, and this is the acetone, CH3CO CH3 react with hydrogen. So I am writing here CH3. This is the CH3
COCH3 react with hydrogen. Hydrogen I can write here in this manner. This is the hydrogen. In acetone, the oxygen react with H2 of the hydrogen, and we get this type of compound, and the name of this compound is propanone hydrazone. This is the propanone hydrazone. Okay, and when propanone hydrazone react in the presence of KOH and glycol, boiling, this is the boiling glycol, actually 453 and 473 temperature, we get a alkane, and the name of this alkane is propane, and hydrogen is removed, sorry, nitrogen is removed in the form of nitrogen gas. See this nitrogen, N remove in the form of nitrogen gas. Now I think the chemical reactions are very clear to you. If you know the chemical reactions, और अगर आप लोगों को अच्छे से अगर समझ में आ गई है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए ये सर हमें अच्छे से समझ में। वेलकम यू ऑल again. Now we are going to start third chemical equation, that is oxidation reactions of aldehydes and ketone. Oxidation reactions of aldehydes and ketone. See, in the aldehydes and ketone chapter, we have to discuss three reactions. We have to discuss 5 reactions, and the first chemical reactions that aldehydes and ketones shows, that is the nucleophilic addition reaction. This is the first type of chemical reaction shown by the aldehydes and ketone, nucleophilic addition reaction. Then second type of reaction is reduction reaction. Then third type of reactions now we are going to discuss, that is oxidation reaction. And fourth type of reactions we will discuss later, that is the reactions due to presence of alpha hydrogen. And fifth type of chemical reactions we are going to discuss other reactions of aldehydes and ketone later. Now we are going to discuss oxidation reaction. So oxidation reactions means whenever any compound react with oxygen, compound react with oxygen, oxidation take place. Whenever any compound react with oxygen, oxidation take place. Or whenever in any compound hydrogen gas is removed, oxidation take place. So these are the basic definitions that we have discussed in class 11th chapters. So aldehydes easily oxidize to carboxylic acid containing the same number of carbon atom. It is very important sentence, dear student. Whenever we oxidize aldehyde, they easily convert into carboxylic acid and containing the same number of carbons. Means in the carboxylic acid, the number of carbon do not increase nor decrease. The same number of carboxylic acids we get. And for oxidation reactions, we have to use some oxidizing agent. So oxidizing agents are categorized into two: strong oxidizing agent as well as mild oxidizing agent. Strong oxidizing agent and mild oxidizing agent. So strong oxidizing agents are concentrate nitric acid. KMnO4 is very famous. KMnO4 is again very famous oxidizing agent, KMnO4. And K2Cr2O7, again it is very important oxidizing agent. These three, concentrate nitric acid, KMnO4, and K2Cr2O7. K2Cr2O7 means potassium dichromate, and it is KMnO4 means potassium permanganate, HNO3 nitric acid. These three are strong oxidizing agent. And the other oxidizing agents that we use for oxidations of aldehydes are Tollane reagents, Fehling solutions, and Benedict solutions. These are the other important oxidizing agent. This is the new type of reagents that you are going to familiar in this chapter. ये आप लोगों के लिए नए टाइप के reducing agent, sorry, oxidizing agent है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है बच्चों? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशंस, एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. दीज थ्री आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों जैसे ही एल्डिहाइड टोलेन रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो एल्डिहाइड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे इस सेंटेंस को बच्चों। टोलेन रिएजेंट क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब एल्डिहाइड्स टोलेन रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एल्कोहल होते हैं बच्चों, एल्कोहल, ये दिस इज द जनरल ट्रेंड, एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, दिस इज द जनरल ट्रेंड, एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, दिस इज द जनरल ट्रेंड। ओके, जनरल ट्रेंड का मतलब एक ऐसा ट्रेंड जो सबके ऊपर फॉलो होता है। ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास में एल्डिहाइड बनेगा, और अगर एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो अभी हमें क्या करवा रहे हैं, एल्डिहाइड्स का क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हम करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन कौन से यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज वीक oxidizing agent, and the list of strong oxidizing agent and weak oxidizing agent are given. Now we are going to start the oxidation of aldehydes. बच्चों इसको ध्यान से सुनेंगे। जब हम एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो रिएक्शंस बहुत सिंपल है बेटो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो, ये R C O H, this is the simplest aldehyde, this is the representation of a aldehyde molecule react with oxygen। react with oxygen का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ना इसको, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं H को ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बड़े ब्रैकेट के अंदर मैं H को लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या है, इनके सिंबल्स हैं, दीज आर द सिंबल्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीजन को अगर मैं बड़े ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमें करवाना है, तो ये एल्डिहाइड है बच्चों RCO, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन क्या हो रही है बच्चों, इसमें ऐड हो रही है। देखो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी, ओनली 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, 2 ऑक्सीजन हो गई। ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, और ऑक्सीजन ऐड हो गई, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन चल रही है हमारी, कौन सी रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो समझ में आया होगा आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्कस कर लेते हैं हम इसमें। तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग, देखो एल्डिहाइड्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड्स किसकी तरह काम करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आ रही है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उन्हीं का ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिडक्शन होता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। जबकि कीटोन्स जो होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। कीटोन्स जनरली डू नॉट ऑक्सीडाइज, बट दे कैन ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशंस। विग्रस कंडीशंस का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें काम में लेना है, अगर हमें कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा, तभी हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिखे हैं बच्चों, HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, KMNO4 है, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 ऑल आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकी प्रेजेंस में अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं और विग्रस कंडीशंस के अंदर, मतलब टेम्परेचर को हाई रखेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे और कंसंट्रेशन इनकी हाई लेंगे, एसिड्स की कंसंट्रेशन हाई लेंगे, मतलब कंसंट्रेट एसिड हम लेते हैं यूज में, तो कीटोन्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो कीटोन्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज किस टाइप से होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वेट ए मिनट।
हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे रिडक्शन ऑफ कीटोन, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के अंदर हमें क्या करना है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेने हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने हैं। जैसे मैंने एक सिंपलेस्ट यहाँ पे क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। तो मैंने सिंपलेस्ट कीटोन को मैंने इस टाइप से लिखता हूँ, CH3 CH2 CO CH2 and R dash. This is the simplest ketone I have taken. The number, इसमें नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी वही बात है, उधर से करेंगे तो भी वही बात है। 1 2 3 4 5। अब देखो जैसे ही हमें इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, साथ में इसको टेम्परेचर भी हाई रखेंगे। टेम्परेचर हाई रखेंगे तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब बॉन्ड का क्लीवेज किस किस टाइप से होगा ये हमें ध्यान रखना है। देखो दो टाइप से बॉन्ड क्लीवेज होगा इसमें। सबसे पहला बॉन्ड क्लीवेज होगा देखो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच का। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 अगर बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, ये वाला अगर बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अगर ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना बच्चों, तो इस कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये जो पोर्शन है ना, इससे कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इससे बनेगा आर COOH। और इससे कौन सा कंपाउंड बनने वाला है, इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा, इससे बनेगा R CH2 COOH। आई थिंक द केमिकल रिएक्शंस आर क्लियर टू यू। ये कब होगा, ये रिएक्शंस कब, ये कंपाउंड कब बनेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कब है, जब बॉन्ड क्लीवेज होगा इन बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3। कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में अगर बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ रही है। इसी टाइप से अगर बॉन्ड क्लीवेज होता है 2 और 3 के बीच में नहीं होता है, और बॉन्ड क्लीवेज अगर 3 और 4 कार्बन के बीच में हो जाता है, तो हमारे पास में जो कंपाउंड मिलेंगे वो मिलेंगे। देखो ये बॉन्ड अगर क्लीवेज होता है, अब ये बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें आपको ध्यान से देखना, ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ कर देता हूं, ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, सॉरी ये बॉन्ड है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। तो इस बॉन्ड क्लीवेज होने से जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा, कौन कौन से बन सकेंगे, R COOH, सॉरी RCOOH प्लस RCH2CO। तो इससे जो कंपाउंड बनने वाला है वो बनेगा RCH2COOH। इस टाइप के कंपाउंड हमें मिलेंगे बाय द क्लीवेज ऑफ और बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। So welcome back. So by the cleavage of carbon 2 and carbon 2, carbon 1 and carbon 2, this is the carbon 1 and carbon 2 bond. This is the cleavage. By this manner we get this type of compound, and by RCOO, so there are 3 carbon, 1 2 and 3, so we write here in this manner. So this is we have discussed. So by strong oxidizing agent are HNO3, KMNO4 and K2Cr2O7 and concentrate sulfuric acid as well. Now we are going to discuss, that is very important point of our lecture, mild oxidizing agent. बच्चों इसको आप ध्यान से सुनेंगे और लिखने की कोशिश करो आप, जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए फायदे हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे जो सिलेबस में है वो 3 है। फर्स्ट इज टोलेन रिएजेंट, सेकंड इज
फेलिंग सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, हमारे एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ टोलेन रिएजेंट दिया हुआ है और फेलिंग सॉल्यूशन दिया हुआ है। फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेन रिएजेंट, ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है ये नीट और जी के सिलेबस में दे रखा है, तो वो भी मैं कवर कर रहा हूँ साथ साथ में। ये सिर्फ 11th, ये सिर्फ 12th क्लास का चैप्टर नहीं है, इतना जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ये सारा नीट और जी का सिलेबस है, तो वो मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। तो अच्छे से देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो वो कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं टोलेन रिएजेंट के बारे में। तो टोलेन रिएजेंट इज ए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। वेरी सिंपल डेफिनेशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। तो टोलेन रिएजेंट क्या होता है और टोलेन रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टोलेन रिएजेंट। एंड हाउ टू फॉर्म ए टोलेन रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ टोलेन रिएजेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ टोलेन रिएजेंट मतलब कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ बच्चों, इजी वे में बता देता हूँ आपको। तो हमें क्या करना है, AgNO3 लेना है। AgNO3 आप लोगों को पता होगा, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस सॉल्यूशन है ये। इसके अंदर हमें क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ट्रांसपेरेंट होता है सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे हम इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वैसे ही एक व्हाइट टर्बिड प्रिसिपिटेट बनेगा। व्हाइट टर्बिड प्रिसिपिटेट मतलब गंदला सा व्हाइट सा प्रिसिपिटेट बनेगा। अब हमें क्या करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते रहना है उस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाते रहना है। कब तक मिलाते रहना है, जब तक के वो जो पीपीटी बना है ना बच्चों, पीपीटी प्रिसिपिटेट जो बना है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। तब तक हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन उसके अंदर मिक्स करते रहना है। और जब एकदम ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाए तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, टोलेन रिएजेंट। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, टोलेन रिएजेंट। तो ये एक सिंपल लिखा हुआ है, AgNO3 react with ammonium hydroxide we get white color precipitate. Now add more ammonium hydroxide solution till the precipitate of Ag2O just disappear. तो जैसे ही हम AgNO3 के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। और ये व्हाइट प्रिसिपिटेट किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन लिखी है, AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रिसिपिटेट बना है इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, एक्सिस में हमें ऐड करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकले। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द टोलेन रिएजेंट। ये हमारे पास में टोलेन रिएजेंट है। तो टोलेन रिएजेंट की जो हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आगे बात। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एल्डिहाइड को और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टोलेन रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। अगर हमारे पास में दो कंपाउंड दे दें टेस्ट ट्यूब में डाल के, एक हमें एक टेस्ट ट्यूब में दे दे एल्डिहाइड और एक टेस्ट ट्यूब में दे दे हमें कीटोन डाल के, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। और दोनों ट्रांसपेरेंट होने के बाद में के अलावा दोनों की जो स्मेल है, स्मेल से भी हम उसको अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है टोलेन रिएजेंट से टेस्ट करवाना। तो टोलेन रिएजेंट से हम जब टेस्ट करवाते हैं तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब एल्डिहाइड को हम टोलेन रिएजेंट से रेड करवाते हैं तो एल्डिहाइड इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। ये जो एल्डिहाइड है ना बच्चों, ये क्या होते हैं, अभी हमने बताया था ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं बच्चों, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन होकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका, बात समझ में आ गई। और ये जो टोलेन रिएजेंट है ना बच्चों, ये टोलेन रिएजेंट इसका खुद का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा। टोलेन रिएजेंट reduces itself and aldehydes oxidize itself। एल्डिहाइड्स क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो टोलेन रिएजेंट लिया है ना हमने वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और टोलेन रिएजेंट जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनेगा, हमारे पास में एक सिल्वर मेटल बनेगी और ये सिल्वर मेटल टेस्ट ट्यूब की वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो क्या करना है, हमें एल्डिहाइड लेना है गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर।
हाँ बच्चों, जल्दी से अटेंडेंस दे दो आप अपनी अपनी, जल्दी से अटेंडेंस लिख दो, जल्दी से लिख दो, हमारे पास में टाइम बहुत कम है। जल्दी से अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो, जल्दी से बच्चों अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो। मैं आप सब लोगों के चैट भी देख रहा हूँ, चैट भी देख रहा हूँ, मैं चैट पढ़ रहा हूँ सबके, मुझे पता रहेगा। ओके, तो दिस इज द एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या होगा बच्चों, एल्डिहाइड का खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। टोलेन रिएजेंट का खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जब टोलेन रिएजेंट का रिडक्शन होता है तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर मेटल मिलेगी। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे हम एल्डिहाइड की रिएक्शन टोलेन रिएजेंट से करवाते हैं, एल्डिहाइड सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिल्वर सॉरी थोड़ा सा टोलेन रिएजेंट ऐड करना है, और टोलेन रिएजेंट ऐड करने के बाद में क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है। तो हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स है उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की एक कोटिंग आ जाएगी, सिल्वर कलर की कोटिंग आ जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। और सिल्वर मिरर